said that, you see, after working for 40 years as a film director, writer, producer, I came to a point when I had money and I wanted this knowledge, experience and money. I wanted to give back to my younger generation as an equal human being. And I thought of setting up film school in Bombay. Because for the 100 years of cinema, if you look at it, all the film producers could make only studios. Marvel Studio, Vishaka Studios, all those. But unfortunately, there was an era when the education was not important. It was an industry of instinctive talent. See, not a really formalized training schools and organizations. So I wanted to happen that our industry be organized industry with the real professionals, with the real background and good training behind it in the field of art, science, commerce, in cinema and in media. So I thought of the next generation, and I'm glad that now we have set up this institute in Film City. And today I'm proud to say, and I must give credit to my faculty. You see, I feel that every institute becomes big, not because of the name of a person like Subhash Ghai, not because of the buildings or money you spend on it. It is because of the teachers. Every institute जो है वो मार्केटिंग से नहीं चलता है. उसके पीछे जो उसके अध्यापक हैं, टीचर्स हैं, गुरुज हैं, वो किस तरह के हैं. And the biggest problem in setting up this Muslim schools was there was no teacher. Because इस तरह के फिल्म स्कूल, मीडिया स्कूल 2000 में, 2001 में किसी ने सोचा भी नहीं था, खोला भी नहीं था. तो उस वक्त मुझे बहुत प्रॉब्लम थी टीचर्स की. पैसे की भी नहीं थी, पैसा था मेरे पास, डिज़ाइन भी कर लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन टीचर्स कहाँ से लगेंगे. और मैंने अपने इंडस्ट्री के जितने दोस्त थे उन सबसे रिक्वेस्ट किया. इट वॉज वेरी हार्ड फॉर मी टू कन्विंस देम टू कम आउट ऑफ द प्रोफेशन एंड बिकम ए टीचर. सो जो भी बेचारे कर सकते थे वो करे. I questioned Nasuddin Shah. I said, you handle acting course. I brought Rajan Kothari, a very big cameraman, to look after cinematography, some sound, some editing, some writing, so many things. So anyway, we could get that. But I must tell you that I must give this credit that now it is the 9th year of the Michelin Books and it has become one of the top 10 in the world. Out of 1200 film schools, this is the number 6 schools in terms of facilities, technology, the teaching, the curriculum, the quality, the philosophy of education, everything, though it's a private. So all credit goes to my daughter, I would say, Meghna Ghai. She worked very hard in bringing the quality of education. What I could provide her or them was the money and infrastructure. But finally she worked very hard on the quality, and that's why she contacted the best of the international faculty, international people. And we brought deans from America 2 times to set up the discipline part of it because this industry was very indisciplined. So बहुत सी चीजें उन्होंने की, and I must give full credit to Meghna Ghai and her team. She got fantastic people around her, and you could see it was, as I said, that she also contributed a lot to streamline the whole thing. So my hearty thanks to all those teachers at Michelin Books, जो कि आज ब्रांड है बहुत बड़ा, and we have opened this film school in London also. So any country ambassadors or a president who visits our film school, he says, why can't I have this like this in my country? So we are opening in various countries also the Michelin Books. हमारे भारत में अभी टाइम लगेगा समझने के लिए कि Michelin Book क्या है. वो लोग जमीन मिलो तो केस कर देते हैं, PA लग जाता है, इनको जमीन दी हुई है, पता नहीं क्या करेंगे इसके अंदर. तो भारत की दशा थोड़ी सी अलग है, लेकिन हम खुश हैं कि हमारे बच्चे जो हैं 1200 students have passed, and out of 1200 students, 95% students are already well placed in media industry with the high positions, not a lower position, and they are contributing a lot to the media industry, film industry, whether it's the regional cinema or the national cinema. So the students are doing brilliantly. That is also a big success. We have 20% of foreign nationals who are studying in Michelin Books. And our teachers going there and teaching them
in Wesley Woods, Bradford University. Isn't it credible? It's a big credible that Indian teachers going there to teach Goras. We will tell you what is art and what is the cinema. So this is what Wesley Woods have achieved. And having said that, now we have very good positions, we are in a legal position also, and we are more relaxed and we are expanding in a big way. And particularly I have taken one initiative this year, is that to add one more cultural hub to the whole institute environment. And I call it Fifth Veda. What is Fifth Veda? Fifth Veda is that after four Vedas, Vedas are the books on knowledge and wisdom in the ancient time. How a man should develop, grow and die. You see. So in those fifth Veda, there was a fifth Veda after four Vedas, which was called Natya Shastra. Natya Shastra के जो अंतर्गत है, उसमें डांस, म्यूजिक, ड्रामा, पेंटिंग, पोइट्री, जितने आर्ट फॉर्म है, और जो कि आपकी थिंकिंग को बढ़ाते हैं, जो आपको एलिवेट करते हैं, वो कल्चरल हब हमने बनाया. And we have completed now. I started this year only. And under fifth Veda, what we do is on every Thursday, we invite a legend. We invite a legend like Subramaniam Sir, violin, and Umang Kumar for painting, Vishal Kamil for poetry. So we call all those legends of a master of their art. They come to the Wesley Woods, they meet students, they perform, they take a workshop, they tell the art and technique of that particular art. So what to develop the artistic skill of students and to connect students to the ancient art in a very interesting and entertaining manner, so the students don't get bored. Because new generation is cutting off from all those ancient classic arts, and they are being more you can say influenced by the Western style and the happenings and rule and all those kind of things, and forgetting their own things. It's not that I am not a conservative guy कि नहीं आपको वो करना चाहिए जो हमारे दादा ने किया था. मैं कहता हूँ आपको वो करना चाहिए जो हजारों साल पहले किया था. If you want to be modern, don't follow Dadaji's. Don't follow father parents. Follow the original man. Who was the greatest? Who was the biggest writer? Who was the biggest playwriter? Was Vyasa. तो व्यासा आज भी पता नहीं हुआ हमारे पास. जो ऐसा लिख के गए कि उसके कैरेक्टर्स को लोग भगवान मानने लग जाए. उसने जो प्ले लिखा है, रामायण, एक महाभारत, it was a play, and by centuries people started to worship all those characters. अपने बच्चों के नाम रखने शुरू कर दिए. तो आप क्या समझते हैं कि 50 साल के बाद बच्चों का नाम गब्बर सिंह होगा, वीरू होगा? So playwright ने such a who wrote epicals, Shakespeare है, व्यासा है, तुलसीदास है. So writers is it. Connect yourself to the most of an ancient art and culture, and you will see you will win in this situation जहाँ पर कि हमारे बच्चे इस वक्त they are confused कि whether we should go for a European art, American art, or a contemporary art. उसी चीज को अप्रूव कर रहे हैं. But what we teach in institute is go with the ancient art. Be like him, be like that. Who 3,400 years back, 2,000 years back. If you can become that, you are going to excel in this mediocre society. इसमें रखा क्या है? किसी के पास कुछ भी नहीं है, bankrupt है सब. एक दूसरे को समझा रहे हैं, वो कुछ नहीं. तो excel करने के लिए कोई मुश्किल बात नहीं. That is why we started Fifth Veda. Where students are enjoying it. Basically, we never knew about it. They are enjoying so much. So this is the exercise about connecting them with classical forms. And also in this July, I am opening the music of school, school music, school of music. Where we will not कि तबला और बाजा लेके बैठ जाओ और शास्त्रीय संगीत सीखो. शास्त्रीय संगीत की पहले समझ करो. ये आया कहाँ से शुरू हुआ था, उसकी वजह क्या है. हमारे पूरे माँ बाप जितने थे, दादा परदादा, शास्त्रीय संगीत की रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन समझते नहीं. इसीलिए बच्चों ने हिट करना शुरू किया. कि बच्चों ने कहा कि जब तुम समझते नहीं हो तुम उसको प्रशंसा कर रहे हो. संस्कृत में तुम शादी करते हो और संस्कृत हमको पढ़ने नहीं देते. What a funny parents you are. So there was a lot of confusion of the interpretation of our all ancient art. Gita was written 7 times. If you go to the ancient art, you will देखिए हम फॉलो क्या करते हैं,
महाभारत में जो गीता लिखी है वही है हमारी गीता इज अ होली बुक ऑफ विजडम. गीता इज अ नेम, but Gita has been written by so many people on various centuries. But if you come to know it, then you will come to know that यार इसके अंदर में इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. Let us understand the truth behind the truth. So there are so many things. So we don't teach students, we groom students. We groom everyone. कोई बीमार है, कोई कमजोर है, कोई खुशहाल है, कोई नोटोरियस है. इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम करते हैं. और हमको भगवान ने अभी तक बचाया हुआ है कि हम सरकार के उस यूजीसी और एसीटी में नहीं आए. सॉरी सर, जहाँ से इंस्ट्रक्शन वहाँ से आती है कि ऐसा पढ़ाओ, ये मत पढ़ाओ. हम बोलते हैं बच्चे जो तुम पढ़ना चाहते हो वो पढ़ो. डू व्हाट यू लव. जो तुम्हारा मन करता है, जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, वही करो. कोई भी कोर्स चेंज कर लो, कभी भी कर लो. डिस्कवर योरसेल्फ, रीडिस्कवर योरसेल्फ. दैट इज द थ्योरी ऑफ मिस्टर मोस्ट दैट आई एम प्रोवाइडिंग दैट. एंड दैट्स व्हाट. Thank you, Subhaji, for your initial special talk and to introduce the keynote addressee. And that's a huge area, I mean, just for your entertainment industry. As per the FICCI frames of advertising communication, marketing communication, bringing that through the electronic media to the larger masses and all. Show me a phone, I want to see what music is on the phone. Now, these are little things, folks. Then demonstrate that to me on Facebook, on Twitter, and I Google you. That's the first thing I do. You know, and then I see whether the mismatch between what you do on social media. Don't build a false life. Build a true picture of yourself. And remember, the things that are cool to you and cool to you are wearing clothes which are inappropriate. I'm not talking about, you know, short clothes. I'm saying inappropriate to certain audience. Be careful. Be very, very careful. These are very dangerous things you are doing. It's fun today, but can come back to 5 years old and 18 years old and 20 years old. I might have done any number of ridiculous things. Maybe I might even have done things that I will ever know it. But in your lives, I can find out anything about you. In all the social media, I can find out anything about you. So what I'm going to urge you, build your reputation, maintain your reputation and keep it clean. Thank you. Like I said, I'm around here for questions from anybody about media, about TV, about print, about anything. I'm here. I just thought I'd keep it short and, you know, get the time made up. Thank you so much. जैसा कि आप यहाँ पर आज मौजूद हैं, आपने बहुत सारी बातें की यहाँ एजुटेनमेंट के बारे में. क्या कुछ कहना चाहिए आज के दिन यहाँ पर लोगों से? ये आप सबको पता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन में जा रहा हूँ, फिल्मों से हट के. तो एजुकेशन में मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आने वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारे थिंकिंग जनरेशन होनी चाहिए, आर्टिस्ट जनरेशन होनी चाहिए. खाली टेक्निकल और खाली मैकेनिकल एजुकेशन नहीं होनी चाहिए. इसीलिए जब भी इस तरह के एंटरटेनमेंट के जो फंक्शन होते हैं या हमारे दोस्त जो हैं दीपक चौधरी जो हैं ये इस तरह के जब फेस्टिवल रखते हैं, इवेंट रखते हैं, तो मैं ज़रूर पार्टिसिपेट करता हूँ क्योंकि इसमें मार्केटिंग की बात नहीं, इसमें एजुकेशन की बात है. क्योंकि नई जनरेशन आज चाह रही है, जितने भी बच्चे हैं मैं देखता हूँ कि वो चाहते हैं कि हम मीडिया में जाएँ, हम अपने आर्ट को एक्सप्रेस करें, हम आर्टिस्ट बने, हम थिंकर बने, हम डिज़ाइनर बने. तो इन सबको इनक्रेज करने के लिए इस तरह की जो इवेंट है बहुत इम्पोर्टेंट है. पहले इस बार ठीक कर लेंगे. मैं पॉलिटिशियन तो ऐसे बोलता हूँ गिर रहा है यार. मैं भारत के उन नागरिकों में से हूँ जो कि आने वाली जनरेशन के लिए, उसकी खासकर शिक्षा के लिए बहुत चिंतित हूँ. मैं चाहता हूँ कि हमारी आने वाली जनरेशन आर्टिस्टिक हो, थिंकर हो, क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो. इसीलिए जब भी इस तरह के जब इवेंट होते हैं, जैसे कि हमारे दीपक चौधरी जो हमारे दोस्त हैं, इन्होंने एंटरटेनमेंट का जो इवेंट रखा है वो सबको प्रोत्साहन दिया है कि आप जितने भी स्कूल्स हैं जो कि डिज़ाइनिंग में, कम्युनिकेशन में, आर्टिस्टिक टेम्परामेंट में स्कूल खोल रहे हैं, उनका एक आपस के अंदर संग्रह कराया गया है और बच्चों को प्रोत्साहन मिले
मैं जानता हूँ कि आने वाली जनरेशन जो है वो मीडिया में, आर्ट में, सिनेमा में, फिल्मों में, टेलीविज़न में, डिजिटल में बहुत काम करना चाहती है। वो एक रेगुलर एजुकेशन नहीं चाहती है। तो उसके लिए भी जो ये चीज़ें प्रयास है, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमें फिल्म मेकर्स को, हमारे सीनियर लोगों को सोचना चाहिए। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि जो यंगर जनरेशन है आज उसके पास सब इंफॉर्मेशन है, सब नॉलेज है, पूरा नेट है, पूरा डिजिटल वर्ल्ड है उसके सामने। आज वो कर सकता है। हमारे टाइम पे तो कुछ था ही नहीं। हम तो सिर्फ आसमान में देखकर अपना चित्र बनाते थे। अभी चित्र तो इतने बड़े हैं और नॉलेज, विजडम इतनी बड़ी है कि आप असली एंशिएंट नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं। आप वो जो 4000 साल पहले ट्रुथ क्या था उसको आप खोज सकते हैं। तो इस तरह की शिक्षा और इस तरह की कम्युनिकेशन जो डिज़ाइनिंग है वो तभी आएगी आपको। आप एक्सेल तभी करेंगे जब आप एंशिएंट आर्ट से जुड़ेंगे। जैसे हमने विस्ली वुड्स के अंदर एक 5th वेदा शुरू किया है, जिससे कि हम अपने बच्चों को पहले एंशिएंट आर्ट से भी जोड़ते हैं। मॉडर्न आर्ट्स, कंटेम्प्रेरी डांस से लेकर वो क्लासिकल डांस जो 3000 साल पहले हुआ था उसको भी जोड़ते हैं। तो जब इस तरह की एजुकेशन शुरू होती है, और मैं ये आशा करता हूँ दीपक जी कि आपका भी जो ध्येय है और आपकी भी जो फिलॉसफी है इसी तरह की एजुकेशन की है कि अगर डिज़ाइन की बात करते हैं तो आर्टिस्ट की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो आर्टिस्ट की बात करते हैं। आर्टिस्ट का मतलब खाली एक्टर नहीं होता। आर्टिस्ट का मतलब होता है कि आपका आर्टिस्टिक टेम्परामेंट, एक कम्युनिकेट करने का तरीका, एक सोचने का तरीका, एक डिज़ाइन करने का तरीका, एक पेंट करने का तरीका। तो ये एक बहुत ही अच्छी संस्था है, मैं कहूँगा कैपिटल इवेंट आपकी, जिसने कि इन चीज़ों को दिल्ली में 2 दिन किया आपने, अभी बॉम्बे में किया, अभी कलकत्ता में करने वाले हैं। 31 में कलकत्ता, 31 को कलकत्ता में भी हो रहा है। और इस तरह की और भी संस्थाएं जो हैं मैं उनको चाहूँगा कि वो इसको प्रोत्साहन दें, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ हमें रास्ता दिखाने वाले एक सीनियर लोग हैं। So you are one filmmaker who's always, like you just said, you want to educate the newer generation and all of that. So does it upset you or dishearten you when the government is not coming out in complete support of Whistling Woods? जी हाँ, बिल्कुल दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि जो विजन हम लोग लेके चले हैं कि आने वाली जनरेशन को हम आर्टिस्टिक टेम्परामेंट में, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम में बनाएंगे, उनको प्रोग्रामिंग करेंगे नई एजुकेशन का, और उस वक्त जो है पॉलिसी मेकर्स या सरकार जो है उस वक्त आपका साथ नहीं देती है, क्योंकि उनको वो विजन ही समझ नहीं आता है। वो अभी तक वो 50 साल पुराने ब्रैकेट में वो जुड़े हुए हैं। उनको नए विजन की बात करें तो उनको वर्ल्ड विजन अच्छा लगता है, लेकिन विजन क्या है वो मालूम नहीं है कि आने वाला जो फ्यूचर टाइम है वो क्या है। ये हमने जो विस्लिंग वुड्स है, हमने 2001 में ही हमने शुरू किया था विद द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जबकि आर्टिस्टिक स्किल बनाएंगे, 5th वेदा जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम होंगे, एंशिएंट हिस्ट्री बनाएंगे, एंशिएंट आर्ट समझाएंगे लोगों को, बच्चों को, ताकि हमारे रियल भारत जो है अगर वो विद्वान था तो कल फिर से विद्वान होगा। तो हमारी नीयत जो थी और विजन था वो ऐसा ही है। और काश हमारी सरकार भी हर चीज़ में टेक्निकलिटी है, हर चीज़ में ये है, हर चीज़ में, तो फिर अगर लैंड जो है वो एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है तो उस देश का क्या होगा, आप बताइए। Also, newcomers are doing the remake of Hero. Nikhil Advani is, directing अब ये it. अभी असली प्रोग्राम में है। So we're just curious. Have you seen the rushes of the film, and what are you expecting from this film? Of course, Salman is producing it. देखिए, क्योंकि वो फिल्म मैंने बनाई थी, तो मैंने जब सलमान ने मुझे कहा कि चलो पार्टनरशिप करते हैं, ये फिल्म शिवाजी आप और मैं मिलकर बनाते हैं, तो मैंने बोला भाई मैं तुम्हें अपने राइट्स दे देता हूँ, लेकिन फिल्म का विजन तुम्हारा होगा, तुम्हारे डायरेक्टर का होगा। मैं इसमें ना कुछ भी ना कंट्रीब्यूट करूँगा ना इंटरफेयर करूँगा, क्योंकि आप जो है आप आज के ज़माने के हिसाब से बनाएंगे। मैं अगर इंटरफेयर करूँगा तो कुछ ना कुछ पुरानी बंसरी लेके आऊँगा, तो उसका फ़ायदा क्या है। कोई भी फिल्म 2 आदमी नहीं बना सकते, एक ही आदमी फिल्म बना सकता है। तो ये जो फिल्म बनी है ये निखिल आडवाणी की विजन से है, अंडर द सुपरविजन ऑफ सलमान खान। तो मेरा इसमें कुछ नहीं है, मुझे ये सिर्फ उम्मीद है, मेरे पास होप है और विश्वास है कि ये फिल्म जो है हमारे हीरो से भी बेहतर होगी, ये मैं जानता हूँ। हाँ, तो ठीक, क्यों मैं बुराई करूँ तो ठीक है। आपको अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने उसका कहा कि ये नहीं, सब कुछ बुराई कीजिए ना, वो नहीं बन सकती। वो ठीक है, ऐसा नहीं होता है। जब हम यंगस्टर थे तब पहले बिमल रॉय आइकॉनिक थे, राज कपूर आइकॉनिक थे, तो हर जनरेशन जो है 35-40 साल के बाद बदलती है, और वो पुरानी कहानियों को लेकर ही, चाहे वो एपिकल कहानियाँ हो, रामायण महाभारत हो, पुरानी स्टोरीज हो, हमने भी कौन सी ऐसी ओरिजिनल स्टोरी बनाई, हमने भी पुरानी स्टोरी की अडॉप्टेशन किया।
लेकिन उसको हमने जब रीट्रांसलेट किया, हमने अपने तरीके से किया। आज बच्चे जो कर रहे हैं रीट्रांसलेट कर रहे हैं, कुछ वेस्टर्न सिनेमा ले रहे हैं, कुछ यूरोपियन ले रहे हैं, कुछ अमेरिकन सिनेमा ले रहे हैं। आप देख रहे हैं जितनी पिक्चरें हैं जो हिंदी बन रही हैं हमारी, तो सब तरह का सिनेमा है आज भी, और अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे लोग। बिल्कुल। Have you seen any of the rushes of the film or you मैंने just want to उसका see the एक full? स्टिल भी नहीं देखा है अभी तक। जी. Okay. Alright. Okay, Well, day before yesterday, personally- you went to see Salman. There has been relief for him currently. What would you have to say? What are your thoughts? देखिए, हमारा देश जो है ना बहुत खूबसूरत देश है। इसमें एक चीज़ है जिसका नाम है जुडिशरी, और जुडिशरी जो है वो उसमें एक अपनी ब्यूटी है। जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 1 है वर्ल्ड में, पता है, इस तरह से जुडिशरी भी नंबर 1 है। आपको अन्याय नहीं होने देंगे। आपके पास एक दरवाज़ा नहीं, 5 दरवाजे रखे हैं उन्होंने, कि अगर आपको सेशन कोर्ट में अगर गलत जजमेंट मिलती है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, फिर आप रिव्यू पिटीशन में आ सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर तभी तो ये होता है कि अगर किसी को फांसी भी मिलनी हो तो 6 साल, 8 साल, 10 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी का नुकसान होने से पहले जुडिशरी कहती है कि हम 10 बार सोच लें, 10 दरवाजे उसके लिए खुले हैं। एंड दैट इज़ द ब्यूटी। इसीलिए जो सलमान के साथ हुआ, तो अगर एक जुडिशरी ने कहा, एक कोर्ट ने कहा, तो दूसरी कोर्ट उसको रिव्यू करेगी, तीसरी कोर्ट उसका फैसला करेगी। तो जहाँ तक सलमान का सवाल है, हम सब जानते हैं, हमारे फैकल्टी जानते हैं कि ही इज़ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग। उसने दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। अब ये चीज़ें जो है, एक आप दुर्भाग्य किसको बोलते हैं? इसी को दुर्भाग्य बोलते हैं ना। एक्सीडेंट हो जाता है, मेरी बाजू कट जाती है, टांग कट जाती है, मेरा दुर्भाग्य है उस बात का। दुर्भाग्य आ गया तो कुछ नहीं चलता। लेकिन ये है कि उसने, जहाँ तक इंसान की बात है, सलमान एक बहुत खूबसूरत इंसान है, और आप सब जानते हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। Right. You met him day before yesterday. What was his frame Sorry, of mind? but we are at a forum which is not relevant, so we'll have to chop. हम लोग अलग कर लेंगे ना, Yeah. बाद में अकेले में मिलेंगे, सारी जिंदगी सलमान की बातें करेंगे। Sorry. लेकिन जो फोरम है वो इम्पोर्टेंट ये है कि आप आए और आप इसको इनकरेज कीजिए। ये एंटरटेनमेंट जो है, ये एक नया किस्म का कॉन्सेप्ट है दीपक जी ने निकाला है, जिसमें कि एजुकेशन भी है और एंटरटेनमेंट भी है, और वही अभी शिक्षा प्रणाली जो है आने वाली कामयाब होगी, नहीं तो नहीं होगी। Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.